Hello everyone, this is the fourth lecture on aldehydes, ketones and carboxylic acids, and in this lecture we will discuss aromatic aldehydes, that is benzaldehyde. So let's see the preparation of benzaldehyde. So there are so many methods of preparation of benzaldehyde, so we will discuss a few methods of preparation. The first one is by oxidation of benzyl alcohol. So we can oxidize alcohols to aldehydes by oxidizing agents like potassium dichromate, or you can say acidified potassium dichromate. So K2Cr2O7 plus H2SO4 on oxidation of benzyl alcohol. So this is benzyl alcohol. It will result in the formation of benzaldehyde. So this is how aldehyde can be prepared, benzaldehyde can be prepared by oxidation of benzyl alcohol. The next is from benzyl chloride. So benzyl chloride, that is benzene ring CH2Cl. This is called benzyl chloride. So on reaction of benzyl chloride with lead nitrate, so on reaction of benzyl chloride with lead nitrate, so when it is boiled with carbon dioxide, it will give benzaldehyde. So this is your benzaldehyde along with lead chloride and HNO2, nitrous acid. So we can prepare benzaldehyde with the help of benzyl chloride, so on boiling it with lead nitrate and carbon dioxide. So next, Gattermann-Koch synthesis. So in Gattermann-Koch synthesis, benzene is mixed with equimolar mixture of carbon monoxide and HCl. So carbon monoxide and HCl result in the formation of HCOCl, that is formyl chloride, and on reaction under pressure with in the presence of AlCl3 and CuCl2, it will result in the formation of benzaldehyde. So this reaction is called Gattermann-Koch synthesis. The next is by vapor oxidation of toluene, or you can say by vapor phase oxidation of toluene. In this reaction, toluene, this is toluene, so toluene reacts with oxygen from air. So toluene reacts with oxygen from air and gives benzaldehyde in the presence of molybdenum oxide, oxide of molybdenum, or we can also use the oxide of zirconium or oxide of manganese as a catalyst in this reaction. So on heating at 773 Kelvin, it will give benzaldehyde. So we can also prepare benzaldehyde by this method. The next is by hydrolysis of benzyl chloride. So benzyl chloride, this is benzene ring CHCl2. This is called benzyl chloride. So when benzyl chloride is treated with water at 373 Kelvin and in the presence of iron, so it will give benzaldehyde. So chlorine is replaced by OH group, you can see here, and on dehydration, on loss of water, so H2O is removed, so it will result in the formation of benzaldehyde. So there are so many methods of preparation of benzaldehyde. The next topic is physical properties of benzaldehyde. So first of all, benzaldehyde is a colorless liquid. It has almond-like odor and it is almost insoluble in water. It does not dissolve in water very easily. So it is very less soluble in water, but it is soluble in many organic solvents. So the next is chemical properties of benzaldehyde. So there are two types of reaction, the one which are similar to those of aldehydes and ketones, the reactions which are similar to those of aldehydes and ketones, and then there are another types of reactions which are different from aldehydes and ketones. So let's see first the reaction similar to aldehydes and ketones. So in this, first is nucleophilic addition reaction. So you know that what happens in nucleophilic addition reaction, a nucleophile attacks and the nucleophile is attached to the carbon and the remaining part will be attached to the oxygen atom. So you can see with HCN similar to those of aldehydes and ketones. So you know that CN minus is nucleophile, so CN will attach to carbon while oxygen will attach to hydrogen. So you can see here CN attached to carbon atom and it becomes OH because this electron pair will
move to oxygen atom. So this is how this compound is formed, and the name of this compound is benzaldehyde cyanohydrin. Now the next is reaction with sodium bisulfite. So it will be similar to that of aldehydes and ketones. So what happens in this reaction? First of all, this is your nucleophile. So this will be attached to carbon atom and Na will be attached to oxygen atom. So it becomes SO3H and ONA. But you know that Na and H are replaced by each other. So it becomes SO3Na and OH. So this is how these reactions will take place. So in this reaction, sodium will be attached to oxygen first, and then sodium and hydrogen will interchange their position. Next is reaction with Grignard's reagent. So same reaction, you know that in this part aryl group will be attached to carbon atom, while MgBr will attach to oxygen atom. So you can see here aryl group is attached to carbon atom. This electron pair will move to oxygen and MgBr will be attached to oxygen, and on further hydrolysis it will lose MgOHBr, and then hydrogen is attached to oxygen atom. So this is how these reactions will take place. So these reactions are similar to those of aldehydes and ketones. Next is nucleophilic addition followed by loss of water. तो इस रिएक्शन में क्या होता है? वाटर लॉस होता है. हाउ? सो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं विद हाइड्रोक्सिल अमाइन. तो ये रिएक्शन भी किसकी तरह होती है? लाइक रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जैसे रिएक्शन होती है वैसे ये रिएक्शंस भी होती हैं. तो यहाँ पे वाटर लॉस होता है, तो हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख लेते हैं. तो वाटर लॉस हुआ यहाँ पे. सो यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड ओ होगा यहाँ पे ये फॉर्म करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ब्रेक होगा, H2O सेपरेट हो जाएगा और ये सी डबल बॉन्ड ओ की जगह पे यहाँ पे आएगा NOH. तो NOH यहाँ पे आ जाता है. दिस इज कॉल्ड बेंजल्डोक्साइम. तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी. उसी तरीके से जो नेक्स्ट रिएक्शन है, दिस रिएक्शन विद हाइड्रोजीन. तो हाइड्रोजीन के साथ जो रिएक्शन होती है सेम रिएक्शन होगी. यहाँ पे भी इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा. यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ की जगह क्या आ जाएगा? सी डबल बॉन्ड N एंड देन NH2. सो दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन. तो रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन लगभग ऐसी होती है, वो भी सेम. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? अगेन वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा ये. सो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन देयर विल बी सेम सी डबल बॉन्ड ओ की जगह क्या आ जाएगा? NH एंड देन बेंजीन रिंग. तो वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा. सो दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन. बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन. तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं. नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन. तो आपको पता है रिडक्शन अगर किसका होता है? जो एल्डिहाइड्स का रिडक्शन होता है. यहाँ पे हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड. तो बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म बेंजाइल अल्कोहल. और रिडक्शन कैसे करते हैं हम? विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl. द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ऑक्सीडेशन देखिए, तो ऑक्सीडेशन अगर हम एयर के साथ करते हैं तो ये काफी डिफरेंट होती है देन दोज ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो अगर हम बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये विद डाइल्यूट HNO3 या फिर और एल्कलाइन KMnO4. तो एल्कलाइन KMnO4 या फिर डाइल्यूट HNO3 से ऑक्सीडाइज हो जाता है वेरी इजीली एंड इट विल फॉर्म बेंजोइक एसिड. तो क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा बेंजोइक एसिड. नाउ जो आपका सिल्वर मिरर टेस्ट होता है मींस टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी ये इजीली क्या हो जाता है? टॉलेंस रिएजेंट से भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है. सो यू कैन सी हियर दिस इज योर टॉलेंस रिएजेंट. सो ऑन रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन पे ये क्या फॉर्म करता है? इट विल फॉर्म अमोनियम बेंजोएट. ये क्या फॉर्म करेगा? अमोनियम बेंजोएट फॉर्म करेगा और अगेन सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा. यू कैन सी हियर सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा. तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट ये भी देगा आपको जैसे एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं. द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है? सो जो आपका बेंजल्डिहाइड होगा विद PCl5. तो देखिए क्या होता है यहाँ पे? डबल बॉन्ड O तो सेपरेट हो जाएगा. इट विल फॉर्म POCl3 और यहाँ पे दो
क्लोरीन एटम किससे अटैच हो जाएंगे, कार्बन से अटैच हो जाएंगे। द नेक्स्ट इज कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन, यू नो व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वन एल्डिहाइड और कीटोन विच डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अल्फा हाइड्रोजन एटम इनमें नहीं होता है। तो जिसपे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, ऐसे एल्डिहाइड से कीटोन्स क्या करते हैं, इनमें कैनिजारो रिएक्शन होती है। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, ऑन हीटिंग देम विद NaOH, अगर आप NaOH के साथ हीट करते हो, दे विल अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उनका ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन भी होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद NaOH, इट इज heated, so it will form, this is your benzyl alcohol, दिख रहा है आपको benzyl alcohol। तो ये हो गया रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन पे क्या फॉर्म करेगा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेम रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन किसमें होती थी, ऐसी रिएक्शन जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं उसमें भी होती हैं। द नेक्स्ट इज क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो ये कैनिजारो रिएक्शन है, जैसे कैनिजारो रिएक्शन है वैसे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी होती है। यहाँ पे क्या है, सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दोनों हमने किसके मॉलिक्यूल्स लिए, बेंजाल्डिहाइड के। यहाँ पे हम किसके मॉलिक्यूल लेंगे, एक बेंजाल्डिहाइड और एक दूसरे कंपाउंड का। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक का रिडक्शन होगा, बेंजाल्डिहाइड का रिडक्शन होगा और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो इट विल फॉर्म बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। सो दिस इज हाउ द रिएक्शंस टेक प्लेस। द नेक्स्ट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है, अगर आप बेंजाल्डिहाइड को हीट करोगे अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन एटम आप यहाँ पे देख रहे हो, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, तो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये इसके साथ कंबाइन होगा। अगर ये इसके साथ कंबाइन हो गया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी इसके पास शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, COH, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड होगा क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एटम क्योंकि यहाँ से गया तो ये किससे अटैच हो जाएगा, कार्बन से अटैच हो जाएगा। दिस विल गिव बेंजोइन। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज Perkins reaction. So you can see in Perkins reaction when benzaldehyde is treated with an acid anhydride. So this is acetic anhydride. तो जब भी आप किसी एसिड एनहाइड्राइड के साथ बेंजाल्डिहाइड को ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COONA एंड इट इज हीटेड, तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा। कैसे, H2O लूज करेगा, देन क्योंकि यहाँ पे CH बच जाएगा, सो इट विल बिकम CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक ही H बचेगा बिकॉज 2 हाइड्रोजन एटम विल मूव विद ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, अगेन बाकी सेम होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब ये कंबाइंड होता है तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक एसिड फॉर्म करेगा, वो भी एक अनसैचुरेटेड। तो आप देख सकते हो यहां से, क्योंकि आपको पता है C डबल बॉन्ड O CH, नेक्स्ट वाला जो C डबल बॉन्ड O के बगल वाला जो कार्बन एटम होगा ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड। सो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। सो यू कैन से दिस इज एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अनसैचुरेटेड एसिड फॉर्म करेगा, इट्स नेम इज सिनेमिक एसिड, इसका नाम तो सिनेमिक एसिड है। सो और साथ में फॉर्म करेगा एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस टाइम इट इज एसिटिक एसिड। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं पर्किंस रिएक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे किसमें होता है, हेलोएरिन्स में होता है या फिर फिनॉल्स में होता है, इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लगभग वैसे ही होता है। बस एक डिफरेंस है, ये जो ग्रुप्स होते थे, either we talk about the haloarenes or phenols, they are ortho and para directing, but this group is meta directing। क्योंकि आपको पता है जो CHO जो ग्रुप होता है ये क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, दैट इज एट मेटा पोजिशन। तो मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है और इसकी वजह से ये ग्रुप जो होंगे दीज आर meta directing, not ortho or para directing. Now if we talk about the electrophilic substitution reactions, the first is हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जनरली हम इस मेथड को यूज़ करते नहीं है हेलोजिनेशन के लिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मेथड। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में हेलोजिनेशन करेंगे, यू कैन सी ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन,
तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो रिंग में नहीं होता है, ये कहाँ पे होता है? दिस क्लोरीन एटम विल रिमूव हाइड्रोजन एटम। सो ये CHO का हाइड्रोजन एटम रिमूव करेगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इस वजह से हम इस रिएक्शन को जनरली यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। यू नीड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड अंडर स्वैम्पिंग कैटालिटिक कंडीशंस। जब तक आपने ये कंडीशंस नहीं क्रिएट की तब तक इस रिएक्शन का होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। देन ओनली देन यू कैन गेट मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो सकती है, बट स्टिल वी डोंट यूज दीज रिएक्शंस। द नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। तो आपको पता है नाइट्रेशन कैसे होता है? बाय रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो HNO3 के साथ इसको आप ट्रीट करोगे तो नाइट्रो ग्रुप NO2 नाइट्रेशन हम कर रहे हैं। नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे आएगा? अगेन मेटा पोजीशन पे आएगा। आपको यही चीज ध्यान रखनी है, और तो या पैरा पे नहीं आएगा, मेटा पे यहाँ पे आएगा। तो इट इज, यू कैन से इट इज मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। उसी तरीके से द नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन के केस में भी सेम यही चीज होगी। सल्फोनेशन में जो सल्फोनिक ग्रुप होता है, सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप होता है, दिस विल बी अटैच्ड एट मेटा पोजिशन। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे अटैच होगा, ये भी मेटा पोजिशन पे ही होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि जो CHO ग्रुप होता है, क्योंकि वो मेटा पोजिशन मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ये हमेशा कहाँ पे होगा? ये मेटा पोजिशन पे ही होगा। सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। सो इट इज इट्स कॉमन नेम। तो इस तरीके से आपके जो कंपाउंड्स फॉर्म हो गए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो ये काफी डिफरेंट है किससे? जो फिनॉल्स होते हैं या फिर जो हेलो एरिन्स होते हैं, वहां पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है दैट टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। बट इन केस ऑफ CHO ग्रुप, इन केस ऑफ बेंजल्डिहाइड, द electrophilic substitution reaction will take place at meta position as it is a meta directing group. So this is all in this lecture. If you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.